Hello kids, today in this video we'll summarize the lesson 3rd, The Desert of your supplementary book, An Alien Hand. The Desert is a story that revolves around deserts. So this is a story about deserts. Deserts means Marusthal, Registan. Many people perceive desert as the land of sand that has the problem of scarcity of animals and water. जनरली लोगों को डेजर्ट सुन के कैसा लगता है कि जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होगी, जहाँ पे पानी नहीं होगा, जानवर नहीं होंगे. हाउएवर डेजर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पीशीज़. लेकिन बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ के लिए डेजर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है. अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर. बेसिकली कोई भी रेगिस्तान में वेजिटेशन नहीं होती है, पानी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है. मोरओवर अ डेजर्ट में बी टू कोल्ड और टू हॉट. तो क्या होता है कि जब रेत होती है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात को ठंडी हो जाती है. तो इट मे बी टू हॉट इन द डे टाइम बट कोल्ड एट द नाइट टाइम. एंड ओआसीज सीम टू बी अ ग्रीन आइलैंड इन अ डेजर्ट. ओआसीज जो होते हैं वो ग्रीन आइलैंड होते हैं डेजर्ट के. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर. सो जो वहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की, फ्लोरा फौना, जो भी हमारे एनिमल्स प्लांट्स होते हैं, वो उन लोगों को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है. वो कम पानी में अपना गुजारा कर लेते हैं. However, many other animals and plants cannot survive in deserts. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है. ऐसे प्लांट्स डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते. डेजर्ट होल्ड सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर, बट दे होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर नॉट यूजलेस पीसेज ऑफ लैंड ऑन अर्थ एज मैनी पीपल कंसीडर देम टू बी. बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ही वेस्ट लैंड है, बट एक्चुअली दे आर नॉट. Desert appears beautiful with desert plant and flowers. When it rains, the sight of the desert can be quite rewarding, which is similar to that of any tropical garden. So here the person is saying that desert plants and flowers when appears make desert beautiful. जब भी desert plants और flowers लगे होते हैं तो desert बहुत beautiful लगता है और वो किसी tropical garden से कम नहीं लगता है. Many people hold the opinion that a desert is nothing more than an endless stretch of land. Furthermore, people have this impression of desert that they are dry, thin, waterless, hot and without shelter. So यहाँ पे हमने देखा कि जो लोग हैं उनको क्या लगता है कि ये जो डेजर्ट्स हैं वो विदाउट वाटर है, बहुत ही सूखे होते हैं, गर्म होते हैं, कोई शेल्टर नहीं होता. तो सो पीपल होल्ड अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट डेजर्ट्स. लोगों का डेजर्ट्स के बारे में बहुत ही नेगेटिव सोच है. इन कंट्रास्ट टू जनरल opinion, deserts are beautiful places on earth. Furthermore, deserts are home to a variety of plants and animals. It is certainly a rare precious sight where desert bloom exists as rainfall takes place. No difference exists between the desert and tropical land. Deserts are filled with hills or mountains but not necessarily a flat land. An oasis is similar to green island that one can find in the middle of the desert. Desert may consist of green plants and trees. Such plants and trees certainly provide comfort and shelter. Furthermore, desert can also consist of springs. So जो भी अभी हमने पढ़ा कि there are it is not a wasteland, it holds important place for the nature. It looks beautiful when there is flora and fauna available. Desert plants होते हैं अलग से जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है. A desert is a hot region but it also can be a cold region like Ladakh. सेम वही चीज़ कि वो हॉट भी है और उतना ही कोल्ड है जितना कि लद्दाख. सैंड डाइम्स आर माउंट्स comprising of a heap of sand that tend to move and shift endlessly at the time of strong winds. रेत के जो पहाड़ बन जाते हैं वो हवा चलने पर बिखर जाते हैं. Very few plants are able to survive on the shifting mounds of desert.
Living things that are desert adapted are able to deal with the scarcity of water. Such animals are able to survive because they require less water for survival. अब क्या होता है कि वो पेड़ पौधे जिनको कम पानी की ज़रूरत है, वो एनिमल्स जिनको कम पानी की ज़रूरत है, सिर्फ वो ही डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज डेजर्ट में बहुत ही कम मात्रा में पानी अवेलेबल है. Camel is a desert animal that is known as the ship of the desert. This animal can survive without water for days. Camels drink plenty of water at one time. We all know, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है, ही इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, और वो पानी के बिना बहुत दिन तक चला सकता है अपना काम बिकॉज वो जब भी पीता है तो एक बार में वो बहुत सारा पानी पी लेता है. कैमल्स ऑल्सो स्वेट वेरी लिटिल एंड कैन बियर हाई बॉडी टेम्परेचर. कैमल्स जो हैं वो बहुत कम पसीना बहाते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, बहुत हाई बॉडी टेम्परेचर भी वो सह लेते हैं. दिस इज़ बिकॉज द बॉडीज़ ऑफ कैमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम आर बॉडीज़. वी अनलाइक कैमल्स हैव टू स्वेट टू कीप आर बॉडीज कूल एंड मेंटेन द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. हमको स्वेटिंग इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी कूल रह सके, लेकिन कैमल्स के साथ में ऐसा नहीं है. Smaller desert animals hide in underground burrows. This allows them to escape the extreme desert temperature. Furthermore, these animals get water as per their requirement from plants and the moisture of meats. ये जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को अंडरग्राउंड बरोज, अंडरग्राउंड ऐसे खोद के पूरा ऐसा बना लेते हैं, उसमें घुस जाते हैं और उसके बाद में वो डेजर्ट की एक्सट्रीम टेम्परेचर एज वेल एज़ अपने एनिमीज़ दोनों को एस्केप कर पाते हैं, दोनों से छुप पाते हैं और उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी मिल जाता है प्लांट्स में से या फिर जो भी वो खाना खाते हैं उसमें से मॉइस्चर के थ्रू. डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस आर एबल टू स्टोर वाटर thanks for their thick stems. Such plants lack deep roots, hence they absorb rainwater because they are close to the surface. अब क्या होता है, जो जैसे डेजर्ट में हमें पता है सबसे फेमस प्लांट है कैक्टस, वो भी पानी को स्टोर कर पाते हैं उनकी इतनी थिक स्टेम की वजह से, और उनकी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं होती है रूट्स, जिसकी वजह से वो रेन वाटर ईजीली एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज वो सरफेस के पास में होता है. Variation of temperature and dryness are distinct feature of deserts. The moisture of the humid climate is missing in the desert. Humidity का माहौल नहीं होता है डेजर्ट में. Due to the lack of this blanket, desert lands heat up rapidly as well as cool off rapidly at night. Same वही मैंने आपको बताया कि दिन में जब उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती तो जो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है दिन में, और रात में बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. Desert is certainly a gift of nature to everyone. As such, its importance is the same as that of other gifts of nature like forest and ocean. Most noteworthy, one must not detest deserts, but rather should consider them as a blessing of nature. जो हमारे नेचर ने हमें ये रेगिस्तान दिया है वो भी किसी रीज़न की वजह से दिया है. जैसे और दूसरे फॉरेस्ट हैं, ओशंस है, वैसे ही डेजर्ट भी हमारा एक नेचर का गिफ्ट है. ऑल्सो जो नेचर है वो बहुत बड़ी जो डेजर्ट है वो नेचर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज़ दैट the desert story sends a powerful message about the value of deserts and why they should not be despised. तो लोगों का जो पर्सपेक्टिव है डेजर्ट के प्रति जो बहुत नेगेटिव है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए, उसमें थोड़ा उनका अट्रैक्शन इस तरफ लाने में कि डेजर्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, डेजर्ट में ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं जो उसको हमें नेगेटिव सोचने से रोकती है. सो दिस इज़ द होल चैप्टर इज़ ऑल about. So let us discuss the question answers. Okay, so coming to the page number 16, comprehension check. So we have the first comprehension check. From the first paragraph, pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is. हमें ऐसे दो phrases बताने हैं जिससे हमें पता चले कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है डेजर्ट के प्रति. सो an endless stretch of sand,
मतलब सैंड का वो पूरा सैंडी सैंड है. वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, पानी के बिना है और बिना शेल्टर के, बिना घर के है. सेकेंड, पिक आउट 2 phrases which describe the desert as specialists see it. और अब हमें 2 phrases बताने हैं जो डेजर्ट को स्पेशलिस्ट देखते हैं जिस नज़र से. अ ब्यूटिफुल प्लेस, द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल, प्लांट, डिस्क्रिप्शन. ओके, सो दिस इज इट. विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई? अब आपको क्यों लगता है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन अच्छा है? तो आई गेस मेरे हिसाब से सेकेंड इज़ द नाइस वन, दैट अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स. और ये हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस भी बताता है ना, राजस्थान में क्या लोग नहीं रहते हैं, एनिमल्स है, फ्लोरा फोना सब कुछ है. सो दिस इज इट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2 ऑन पेज 17. हमें मैच करने हैं फ्रेजेस को आपस में. सो an endless stretch of sand means, it means nothing but sand as far as one can see. मतलब दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत. Waterless and without shelter, no water, no shade. Okay. An oasis, what is an oasis? Fertile place with water and plants in a desert. ठीक है, ओएसिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे फर्टिलिटी है, जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन आइलैंड, राइट. हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास मीन्स नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक. विजिबल नहीं है क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा है. नाउ कम टू पेज नंबर 19. Here is the comprehension check. A camel can do without water, can do without water for days together. What is the reason given in the text? जो कैमल है वो पानी के बिना बहुत दिन तक चल सकता है, इसका क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ दैट द कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल. इट कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर इट ड्रिंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर? जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो अपने पानी की नीड को कैसे पूरा करते हैं? द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स स्पेंड द डे इन द अंडरग्राउंड burrows to escape the heat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and get the water they need from plant juices. Okay, and the question third. In a desert, the temperature rises during the day and falls rapidly at night. Why? Because in humid climates, the air has moisture that protect the earth's surface from the heat of the sun. Since deserts have no moisture cover, they heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night. Now, आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, लाइक डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे, राइट अ पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट्स. दिस क्वेश्चन यू नीड टू डू in your notebook, in your grammar notebook. Okay, no need to do the second question, but yes, you can go to the Google because we are not having any access to libraries, and you can collect information about the lifestyle of people in desert areas. उनके फूड के बारे में, क्लोथ के बारे में, वो क्या काम करते हैं, उनके कस्टम्स कैसे हैं, etc. So you can prepare a report on it if you want. And also you can actually include this in your paragraph of the first activity. Okay, now here that is it. Please do watch the next video in which the pronouns of your grammar's portion has been explained. I'll see you in the next video. Till then, happy learning.